صبح جب وہ اٹھے تو آسمان صاف تھا، بادل کا کہیں نشان نہ تھا، ریتیلی زمین پانی پڑنے سے کڑی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کفار مکہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں آ گئے۔ جس میدان میں کفار نے لائنیں بنائی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اس میں دلدل ہو گئی تھی، گھوڑوں کے سم دب رہے تھے۔ مسلمان بھی نماز سے فارغ ہو کر میدان میں لائن بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طریقے سے دعا کرنے لگے: اے پیدا کرنے والے، اے پالنہار، مسلمان صرف تیرے بھروسے پر تیرے حکم کے مطابق گھروں سے نکل کر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں۔ اللہ، تجھے پوجنے والے، تیرا نام لینے والے، تیرے نام پر مر مٹنے والے تعداد میں کم اور طاقت میں کمزور ہیں۔ اے اللہ، یہ پہلی لڑائی ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں کو ہرا کر شرمندہ نہ کرنا۔ اے قدرت والے، عزت اور بڑھائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو غریب بیچارے مسلمانوں کو جتا ان کی حمایت کر۔ پروردگار، مسلمانوں کو صرف تیرا سہارا ہے، تجھ سے امید ہے، تو انہیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ دعا مانگنے سے آپ کو کچھ تسکین ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، آپ اٹھے اور مسکراتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو آتے دیکھا تو انہوں نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ آپ دھیرے دھیرے چل کر نہایت اطمینان سے اسلامی فوج میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں، جیت مبارک ہو، خدا کا حکم نازل ہو گیا ہے کہ کفار ہار کر بھاگیں گے اور مسلمان جیت جائیں گے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کی خوشخبری اس وقت سنائی تھی جبکہ ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی تھی۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے تہائی تھے اور ہتھیاروں کے لحاظ سے تو 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ تھا۔ کفار تمام جرح پوش، جوان، مضبوط اور تجربے کار لڑنے والے تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے، اور مسلمان فاقہ زدہ، کمزور، بیمار اور بے سر و سامان تھے۔ جرح پوش ایک بھی نہ تھا، معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ مسلمان اور کفار کا مقابلہ کسی بھی طرح برابر کا نہ تھا۔ اس حالت میں بھی جیت کی خوشخبری ایک عجیب و غریب بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے میدان میں آ کر سب سے پہلے صفیں درست کی۔ جب صفیں ٹھیک ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں، لڑائی میں شروعات نہ کرنا، کفار کی زیادہ تعداد سے نہ گھبرانا۔ خدا نے تمہاری مدد کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے تمہاری جیت ہوگی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، دونوں جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فوج کفار میں سے 3 تجربے کار جوان میدان میں سامنے نکل کر آئے۔ ان تینوں میں عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے اور تیسرا ولید تھا۔ تینوں بڑے بہادر، جوشیلے اور لڑنے والے تھے۔ تینوں نے ہے کوئی مقابلے کا نعرہ بلند کیا۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی فوج میں سے انصار کے 3 جوان نکلے۔ ان میں سے عوف، معوج 2 سگے بھائی تھے اور تیسرے عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ تینوں کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تو عتبہ نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ ہم انصار ہیں۔ حضرت عوف نے جواب دیا: ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا اور گھمنڈ میں چور ہو کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تینوں پورے جوش کے ساتھ نکل کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے
औफ, मुअव्वज और अब्दुल्लाह वापस लौट गए। इन 3 नए नौजवानों को देखकर उतबा ने कहा, हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन क्या तुम हमारी ताकत को नहीं देख रहे हो? क्या तुमको ख्याल है कि हमसे लड़कर जीत जाओगे? हुबल की कसम, कभी ना जीत सकोगे। या तो लड़ाई के मैदान में कत्ल हो जाओगे या गिरफ्तार होकर गुलाम बनोगे। हजरत हमजा को उतबा की ये बकवास बहुत बुरी लगी। बोले, उतबा, ताकत पर घमंड ना करो। खुदा में वो ताकत है कि वो कमजोर को भी ताकत वालों पर गलबा दे देता है। मच्छर जैसी नाचीज हस्ती से नमरूद बादशाह को हलाक कर देता है। तुम्हारी ताकत है ही क्या? बहुत जल्द तुम अपने घमंड का बुरा अंजाम देखोगे। वलीद को हजरत हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, खुदा एक फर्जी हस्ती है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हें, तुम्हारी कौम को और तुम्हारे हिमायतियों को जल्द मालूम हो जाएगा कि पहाड़ में सर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, सर ही का नुकसान होता है। वलीद, हद से आगे न बढ़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कड़क कर कहा, बातें बनाने से कोई फायदा नहीं, तलवार निकालो और मुकाबले में आ जाओ। फौरन उतबा, सैबा और वलीद ने तलवारें निकाल कर हवा में लहराई। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया और हर शख्स अपने दुश्मन की तरफ लपका। वलीद, उतबा और सैबा को अपनी अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था। वे बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नौ उम्र थे, किसी लड़ाई में शरीक न हुए थे, इसीलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला न था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर डालेगा, शेर खुदा का खात्मा कर देगा। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से मुकाबला किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहादुरी से उसे रोका और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला कर दिया। वलीद ने तलवार उठाते और अपनी तरफ झुकते देखा। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काट कर खुद पर आई, खुद का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। ये बड़ी ताकत और बहादुरी का काम था। फौलादी ढाल काट लोहे के खुद को तलवार से काट डालना मामूली बात न थी, मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेरे खुदा थे। शेरों से भी ज़्यादा ताकत उनमें थी। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी ही में था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई। इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नाकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंक कर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने भी ना पाया था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वो वहीं ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाकू था। उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र और इस्तकलाल से उसके हमले को रोका, और जब वो दूसरे हमले की तैयारियां कर रहा था तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सहरग काट कर हवा की तरह दाहिनी तरफ से बाईं तरफ निकल गई। सर कट कर दूर जा गिरा, जिस्म धरती पर गिरकर तड़पने लगा। इसी बीच सैबा ने हजरत उबैदा पर हमला कर दिया। सैबा बड़ा बहादुर और तजुर्बेकार लड़ाकू था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उबैदा ने ढाल पर उसका वार रोका। सैबा की तलवार ने ढाल को काट डाला। हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटे। सैबा ने बढ़कर एक और हमला किया। हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हमले को ना रोक सके। तलवार बाईं तरफ से कांधे को काटती हुई गर्दन के चौथाई हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिरे। सैबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया
उन्होंने उसकी तरफ लपकते हुए डपट कर कहा, खबरदार सैबा, तेरी कजा आ चुकी है। सैबा फौरन घायल शेर की तरह गरज कर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पलटा और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली की सी चमक देखकर वो घबरा गया, उसकी आंखें भबक गईं। अभी आंखें अच्छी तरह खुलने भी ना पाई थीं कि तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कट कर दूर जा गिरा। कुफ्फार के 3 बहादुर और शेरे दिल लड़ाकू कमजोर मुसलमानों के हाथों से मारे गए। उनके मारे जाने से कुफ्फार को बेहद रंज और दुख हुआ और मुसलमानों को खुशी हुई। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, जख्म से बराबर खून बह रहा था। हजरत अली ने उन्हें गोद में उठाया और चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर लिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर डाली, हजरत उबैदा ने आंखें खोली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारे से सलाम किया और फिर आंखें बंद कर ली। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर झुक गए। आपको उबैदा की जुदाई से तकलीफ हो रही थी। आखिरकार आपने कहा, ऐ इस्लाम के फिदाई, आखिरत के मुसाफिर, अलविदा। लोग समझ गए कि उबैदा का आखिरी वक्त आ पहुंचा। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आंखें खोली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए, कुछ कहना चाहा, मगर मौत ने कुछ कहने न दिया। जुबान बंद हो गई, हिचकी आई और जान निकल गई। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। काश कुफ्फार हम पर हमला न करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश है। बहिश्त का रास्ता तलवारों के साए में से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी भी ना हुई थी कि कुफ्फार की फौज को हरकत हुई। पैदलों और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा की लाश एक ओर रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े। अल्लाहु अकबर के जोरदार नारों के साथ कुफ्फार भी बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौजें भिड़ गईं, तलवारें चमकने लगीं और घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।